हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड. दिस इज योर कंप्यूटर साइंस टीचर Virendra, and in today's session we will learn some important things about MS Excel. Okay, and before starting this video, first of all I just want to welcome you all on my YouTube channel. Basically, this chapter belongs to class 7th student and this is the part 2, and the name of the chapter is formulas and function. So in part 1 we have learned all the basic things about this chapter, including how to create Excel sheet, how to save your Excel sheet, and apart from them how to open the existing sheet. Okay, these things we have already covered in part 1. You can visit on my YouTube channel and see that video also. So let's come to the next slide, and I just want to show you what content we're going to see in this video. So this is the next slide. So in this video we will cover only 3 topics. Number 1, cell range. Number 2, cell range and its type. And number 3, cell reference of another worksheet. I hope you will definitely watch this video from starting till the end so that you can understand in best way. Am I right? Okay, so let's start our this session. So this is your topic number 5. The name of the topic is cell range. So first of all, you already know that MS Excel is the most popular spreadsheet. I have in the last video I have already given some other kinds of spreadsheet software also, but out of that MS Excel is the most popular, and you know that kind of spreadsheet software is used for calculation purpose, and if you have any kind of chart you can definitely present in a good way. But while working with the table, you should know that many times we are going to select the cell range, cell references, and many times we have to use the functions also. So now it's our responsibility that first we have to understand what is cell range and what is cell references. Okay, let's come to the cell range. What is cell range? Okay, you know that in cell range 2 things are required: starting point and last point. Okay, so once you writing the cell range in MS Excel, we have to use one symbol. That symbol is colon. Yes, that symbol is colon. So I have given one example to you. The cell range can be represented A1 colon and then A10. So cell address, maybe you have to take any 2 cell addresses, and by using these 2 cell addresses, okay, you can use cell range. But the only one thing you have to keep in mind, that what thing is that the cells should be in continuous manner. मतलब अगर आपने A1 लिया, ऐसा नहीं कि A1 के बाद आपने सीधे आपने A10 ले लिया आपने. ओके, लगातार आपका, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो सेल रेंज लिया है वो A1 के बाद A2 A3 ऐसे करके आपका A10 तक आपका लगातार जाएगा. ओके, सो अब हम अगले सेक्शन में हम इसी चीज को प्रैक्टिकली समझेंगे हम, और प्रैक्टिकली समझने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने MS Excel में सेल रेंज को यूज़ करते हैं. आई होप आप लोग अपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को आप वॉच कर रहे होंगे, और वॉच करके आपके अगर कोई डाउट्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम आती हैं, तो आप कभी भी मेरे से यूट्यूब कमेंट्स के जरिए आप पूछ सकते हैं आप. ओके, सो सबसे पहले हम ये समझते जा रहे हैं कि सेल रेंज को कैसे हम इस्तेमाल करें. तो सेल रेंज को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें MS Excel की शीट ओपन करनी पड़ेगी. ओके,
सो हमें यहाँ पर जो हम प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन आपको देने जा रहे हैं, उस डिमॉन्स्ट्रेशन में 4 चीज़ें हम कवर करेंगे। पहले कैसे हम सेल रेंज को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद अगर हमें कोई फार्मूला लिखना है तो हम उस रेंज को फार्मूला में कैसे यूज़ करेंगे, कैसे हम एक पर्टिकुलर नेम को एक रेंज की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, दीज 4 टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर। सो लेट्स कम टू आवर डेस्कटॉप। आई एम गोइंग टू मिनिमाइज दिस। सी, this is my desktop. Okay, so in this desktop, first we are going to understand how we are going to use the cell range. So let's open our one Excel sheet. I have made one Excel sheet for you. Let's open it. It is taking a little bit of time to open. Yes, so right now Excel sheet is already made for you to give you the better understanding about the same. Okay, so right now there is 4 columns are there, A, B, C, D. Okay, E also, it means 5 columns, and 5 rows are also there. First one, this one, this one, this one, and this one. 4 rows and 5 rows and 5 by 5. The table is 5 by 5. Now what I'll do here, we have to understand the cell. Suppose right now there are 4 cells I have selected here, and the 4 cells you want to write in a range. How we are going to write this? So first of all, I have to use the Excel sheet. I have to use the equal to sign. After using equal to sign, what you'll write here? Write the address of this one. Then put colon. One more thing. Remove the equal to sign. Colon, and then you can write this is the address for C5. Okay? I hope you are able to understand. So right now what you are doing here, you are going to use, let me zoom for you so that you can have a better understanding for this. I hope now it's better for you. Right now I have selected 3 cells. This one, that is the address is C2, and this one. It means if you use the cell range, it is started from C2 to C5, from here to here. Okay, so this is the way for selecting the cell range. Now after this, what we are going to do is how to use the cell range in a formula. Okay, how to use the cell range in a formula. How we are going to do that? So for this, what I'll do here, first of all, let's take an example here. Okay, for giving the better understanding, let's take an example. First of all, let's remove this. Put here equal to sign, write here as SUM. I want the sum of numbers. Then use bracket. Then I have selected here. Then put colon mark. This is the colon, and this is the from C2 to C5. I want the addition of numbers. Click one time, C5 automatically comes here. Bracket close. Now this is the formula I have written here, and C2 colon C5 is the one kind of range. Now what I will do here, press enter button. See, this is the sum of all the selected cells. Whatever the cells you have selected, that summation is already given here. Okay, so after using this, what we are going to understand here, now we have to use a particular name. You have to use the particular name. So this is your addition. It is over now. Let's come to the second part. Okay, now search for where is the formula bar.
sorry, where is the formula tab? What now the topic we are running here, naming a range. हम यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं कि एक रेंज है, उस रेंज को एक नाम हम कैसे दें. ओके, उस रेंज को नाम हम कैसे दें. तो इसके लिए हम समझने का प्रयास करते हैं. पहले इसको हटा देते हैं हम. इसको मैंने हटा दिया. हटाने के बाद अब देखिए फॉर्मूला टैब कहाँ पर है. ये आपका हो गया फॉर्मूला टैब, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है फॉर्मूला टैब के अंदर, डिफाइंड नेम. ये आपका क्या है, नेम है आपका. यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा होगा बटन जिसका नाम है डिफाइन नेम. इस पर आप क्लिक करिए एक बार. क्लिक करने के बाद ये आ गया. जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए एक वर्ड में यूज़ कर देता हूँ मैं. एक वर्ड है आपका एडिशन, कि मतलब जो रेंज में यूज़ करूँगा उसका मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक नाम रख देता हूँ मैं. ओके, और यहाँ पर हम इस समय काम कर रहे हैं शीट 1 में, इसलिए यहाँ पर शीट 1 लिखा हुआ आ गया है. यहाँ पर जो भी कमेंट आप लिखना चाहें, जैसे दिस इज द सम फ्रॉम C2 to C7, sorry C5. I have written. Now press OK button. Press OK. Now after creating this, what I'll do here, now I will press equal to sign, then SUM sum bracket, then I will use addition. देखो सी, जब मैंने यहाँ पर एडिशन नाम से मैंने यहाँ यूज़ किया तो यहाँ पर आपका एडिशन आ गया, और यहाँ पर अब हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे. अब देखते हैं रिजल्ट आया या नहीं आया. सी, यहाँ पर अभी कोई ना कोई गलती हो रही है जिस वजह से ये आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है. ये कारण ये कि मैंने यहाँ डिफाइंड नेम तो बता दिया है, लेकिन डिफाइंड नेम के अलावा मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सा एड्रेस आपने सेलेक्ट किया हुआ है. ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि पहले हम सेल को सेलेक्ट करते हैं. जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद दोबारा हम यहाँ पे जाते हैं, डिफाइन नेम पे जाते हैं, और यहाँ पर हम एक नाम रख देते हैं. जैसे हमने रखा था एडिशन, तो चूँकि नाम हमारा प्रीवियसली यूज़ हो चुका है, तो अब हम यहाँ पर कोई और नाम रख देते हैं, जैसे एडिशन _1. ओके, यहाँ पर कमेंट, दिस इज द सम फ्रॉम C2 to C7. अब हम करते हैं ओके. ओके, अब हम दोबारा यूज़ करते हैं. सबसे पहले इक्वल टू SUM इक्वल टू ब्रैकेट, इसके अंदर एडिशन. अब हम नीचे वाला यूज़ करेंगे एडिशन _1, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी इसको क्रिएट किया है. इस पर हमने डबल क्लिक किया और यहाँ पर लगा देंगे. अब हम चेक करते हैं क्या आंसर आता है कि नहीं आता है. सी, अब देखिए वही आंसर आपका आ गया. इस बार आपने क्या किया कि आपने सिलेक्शन पहले किया, और सिलेक्शन पहले करने के बाद आपने वहाँ पर डिफाइन आपने उस रेंज के लिए एक नेम डिफाइन कर दिया, और अब आप जहाँ जहाँ यूज़ करेंगे केवल आप क्या करेंगे, आप इसी नेम को इस्तेमाल करेंगे आप. तो इसी तरीके से बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, और जहाँ पर रेंज इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर हम उस रेंज के लिए हम यहाँ पर एक नेम डिफाइन कर सकते हैं. उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. यहाँ तक हमने प्रैक्टिकली क्या देखा, प्रैक्टिकली हमने ये देखा कि 4 चीज़ें हमने कवर कर ली. यहाँ पर कैसे हमने सेल रेंज को सिलेक्ट किया. नंबर 1, हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द रेंज इन अ फार्मूला, एंड हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन अ रेंज विद द यूज़ ऑफ नेम, एंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दैट. ओके, ये 4 चीज़ें हमने समझी हैं. अब इसी के साथ अब हम आते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ, और अपने प्रेजेंटेशन में अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड क्या है. अब हम इसको स्लाइड शो कर देते हैं. ये चीज़ हमने देखा, 4 टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, प्लीज गेट इन टच विथ मी. आई एम हियर टू हेल्प यू. Now this is a new topic, self defense and style.
सेल रेफरेंस होता क्या है, इसके टाइप क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें समझना है अब। सो इसको समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि सेल रेफरेंस होता क्या है, सेल रेफरेंस क्या होता है, हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द सेल रेफरेंसेस। ओके, द सेल एड्रेस दैट यूज इन द फॉर्मूला, यानी कि देखिए जब आप कोई फॉर्मूला लिखते हैं आप तो सेल एड्रेस ज़रूर लिखते हैं आप, वही सेल एड्रेस जब फॉर्मूला में आप यूज़ कर रहे हैं तब आपका सेल रेफरेंस कहलाएगा वो। ओके, जैसे एग्जांपल आपने एक सेल एड्रेस लिया जिसका नाम आपने A1 है आपका, यानी फर्स्ट सेल को लिया आपने, उसमें आप देखेंगे A जो आपका है वो कॉलम नेम है और 1 जो आपका रो नंबर है, दोनों को मिलाने के बाद आपका क्या बना, सेल एड्रेस। और यही सेल एड्रेस कहीं ना कहीं आप अपने फॉर्मूले में भी यूज़ करेंगे आप, तो ये आपका होता है सेल रेफरेंस। क्या फ़ायदा इससे, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस। सो द एडवांटेज व्हेन यू आर यूजिंग द सेल रेफरेंसेस, you can use the data from different parts of the worksheet or different sheets of the workbook। मतलब क्या हुआ कि जब आपको सेल रेफरेंस मिल गया, वही सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस आप चाहें तो किसी और शीट में यूज़ करें या आप किसी और उस शीट में कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं आप। जो आपका सेल रेफरेंस है वो 3 तरह का होता है, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स रेफरेंस। अब एक एक करके हम इसको समझेंगे डिटेल में हम कि ये क्या होता है। पहले हम समझने जा रहे हैं व्हाट इज रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, अच्छा रिलेटिव का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? प्लीज़ अगर किसी को आता है तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। चलिए मैं आपको आंसर देता हूँ। यहाँ पर रिलेटिव मतलब होता है संबंध, एक रिलेशन, कि यहाँ पर अगर आपने A1 सेल लिया है, अगर A1 से A2 की तरफ जाएंगे, A4 की तरफ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है A1 से A2 में जाने के लिए दोनों के बीच पर रिलेशन होना ज़रूरी है, तभी आप 1 के बाद 2 आएंगे, 2 के बाद 3 आएंगे, 3 के बाद 4 आएंगे। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। व्हेन यू क्रिएट ए फॉर्मूला, references to a cell or ranges are usually based on the position relative to cell, and when you copy or move the formula to other cell, references of the cell change automatically। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। आपने क्या किया, आपने किसी सेल एड्रेस को यूज़ किया किसी के अंदर, आपने ठीक है किस सेल में आपने यूज़ किया, और आपने क्या किया, उसी को आपने कॉपी किया नेक्स्ट सेल में, और जैसे ही आपने नेक्स्ट सेल में कॉपी किया उसका सेल एड्रेस चेंज ऑटोमेटिकली। और जैसे जैसे हम नेक्स्ट सेल में ड्रैग करते जाएंगे सभी सेल्स का एड्रेस आपका चेंज होता जाएगा ऑटोमेटिकली, यानी कि एक सेल का दूसरे सेल में संबंध है यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मूला जब लिखते हैं आपने लिखा फॉर्मूला A1 to A10 लाइक दिस, इस तरह का लिखा आपने और आपने ड्रैग कर दिया। जैसे ड्रैग करेंगे तो A1 की जगह B1 आ जाएगा और आपका B5 की जगह B5 की C5 आ जाएगा। इस तरह से आपका चेंज होता जाएगा। मैं आपको इसका प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। आप मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच करिए और आप यहाँ पर जितना बेस्ट हो सके मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड मैंने हाईलाइट किया है, चेंज, कि यहाँ पर रिलेटिव रेफरेंस में एड्रेसेस चेंज होते हैं ऑटोमेटिकली। एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है कि अगर हम सेल एड्रेसेस को चेंज नहीं करना चाहते हैं तो हम एब्सोल्यूट रेफरेंस को यूज़ कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंस को यूज़ करने के लिए डॉलर साइन का यूज़ करना पड़ेगा। आप डॉलर साइन का यूज़ करिए या तो कॉलम नेम से पहले या डॉलर नेम या फिर रो नंबर के पहले। ठीक है, यानी कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। या तो आप डॉलर साइन को एड्रेस से पहले यूज़ कर लीजिए, नंबर 1। नंबर 2 कॉलम नेम के पहले यूज़ कर लीजिए। नंबर 3 रो नंबर के पहले यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। अब आते हैं मिक्स रेफरेंस की तरफ। मिक्स रेफरेंस बहुत ही अच्छा है आपका। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों को कंबाइन करने के बाद मिक्स रेफरेंस आपका बन गया। यानी कि हम यहाँ पर या तो रो नंबर के पहले आपने लगा दिया और आपने कॉलम में लगाया ही नहीं। कहने मतलब क्या हुआ, जब एड्रेस जैसे आपने A1 लिया आपने तो A के पहले आपने डॉलर लगा दिया और 1 के पहले डॉलर नहीं लगाया। ये जो एग्जाम्पल है वो आपका हो जाएगा मिक्स रेफरेंस के।
अब बच्चों, अब जो समय आ गया है वो आपका है प्रैक्टिकल का, और अब इसी सेल रेफरेंस को अब हम प्रैक्टिकली समझने जा रहे हैं। सो लेट्स कम टू माय डेस्कटॉप। ओके, ये मेरा डेस्कटॉप है और ये रहा मेरा सेल। अब मैं सब कुछ यहाँ रिमूव कर देता हूँ मैं। ये मेरा ऑलरेडी क्या है आपका, ये मेरा टेबल एक बना हुआ है ये। और हमें क्या समझना है यहाँ पर, पहले रिलेटिव, फिर उसके बाद एब्सोल्यूट, यस, देन आफ्टर मिक्स। एक एक करके हम समझते हैं यहाँ पर। सबसे पहले रिलेटिव रेफरेंस को समझते हैं हम। रिलेटिव रेफरेंस मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि अगर आप वहाँ कॉपी करते हो आप किसी फॉर्मूला को, तो वो चीज़ आपका हो जाता है आपका। एक काम करते हैं, यहाँ कंट्रोल Z कर देते हैं क्योंकि हम इस फॉर्मूला को यूज़ कर चुके हैं। एक बार और कंट्रोल Z करते हैं यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ अब एक फॉर्मूला, SUN सम। ऐसे नहीं, आपको पहले एक सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। पहले आप सिंपल तरीके से समझिए, फिर हम आगे जाएंगे। हम सबसे पहले यहाँ लिखा हमने C2 के बाद हमने लगा दिया प्लस, फिर यहाँ लिखा हमने C3, फिर हम लगाया प्लस, फिर लिखा हमने C4, फिर लगाया हमने प्लस के बाद आपका देखो यहाँ इक्वल टू लग गया। हम इसको हटा देता हूँ यहाँ पर, और लास्ट में यहाँ लगा दिया हमने C5। ठीक है, ये हमने कुछ सेल्स को है हमने जोड़ना चाहा, हमने इंटरप्रेस के हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ये तो आप पहले से जानते हैं। अब आप क्या करिए, यहाँ पे देखिए ये जो आपका ये रेक्टेंगल बना हुआ है, इसका मतलब इस सेल में आप काम कर रहे हैं, ये आपका एक्टिव सेल है। दिस इज द एक्टिव सेल। नाउ व्हाट यू डू हियर, नाउ इफ़ यू देखो, अब आपके पास देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा एक माउस पॉइंटर चेंज हुआ है, ये आपका प्लस है। अगर आप यहाँ पे करेंगे तो आपका ये सिलेक्शन हो, सेल सेलेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, केवल सिलेक्शन हो रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, और अगर हम यहाँ पे जाएं और कॉर्नर पे जाएं, यहाँ पर कॉर्नर देखिए प्लस आपका थोड़ा पॉइंटर चेंज हुआ इस तरीके से, ऐसे। और जैसे ही यह आपका पॉइंटर चेंज हो इस प्लस में, नाउ प्रेस द माउस बटन, नाउ ड्रैग इट अगेन, ड्रैग इट लाइक दिस। ओके, हमने क्या किया, ड्रैग किया। अब देखिए यहाँ पर इसका सेल एड्रेस क्या था, जो हमने बताया था C2 C3, इन सब में प्लस हो रहा है। इसका देखिए C3 C4 C5 C6, C2 से स्टार्ट हुआ था यहाँ पर। ठीक है, एड्रेसेस चेंज हो रहे हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए C4 से स्टार्ट हो रहा है ये। ओके, और अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग करूँ, इस तरीके से ऐसे, देखिए इसका भी सम आ गया। ये जो आपने देखा ये सेलेक्टेड पोर्शन है, इसका भी सम आ गया। अगर आपने एक बार और ड्रैग किया तो इसका भी सम आ गया। अब आप चेक करिए एड्रेस, देखिए D3 D4। तो ये होता है रिलेटिव रेफरेंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं मिक्स की, बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मिक्स रेफरेंसेस की। मिक्स रेफरेंस पे हमें डॉलर यूज़ करना है। डॉलर यूज़ तो हमें काम करते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10%। यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, 10%। और इसका एड्रेस हम नोट कर लेते हैं G2। इसका एड्रेस क्या है, G2। मुझे क्या करना है कि मुझे इन सब का 10% निकालना है कि क्या है, 10% मुझे निकालना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इक्वल टू लिखा, इसका एड्रेस क्या है 2 है, और 2 के बाद अब आप यूज़ करेंगे G2। अब आप यहाँ इंटू का साइन लगा दीजिए, इंटू के लिए 8 प्रेस करना होगा, और यहाँ पे लिखिए G2। अब आप प्रेस एंटर करिए। देखिए रिजल्ट हमारा यानी कि 800 का 10% आया कितना, 80। अभी काम करते हैं, ड्रैग करते हैं, हम ऐसे ड्रैग करेंगे, यहाँ 0 आया, यहाँ भी 0। अब आपको सोचेंगे यार बच्चों, आप सोच रहे होंगे 0 क्यों आया, कैसे आया 0। देखिए आप सबसे पहले यहाँ देखिए आप, यहाँ पर C2 में और G2 में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद D2 में तो लिखा हुआ है, लेकिन H2 आपका देखो ये आपका सेल एड्रेस ही चेंज हो गया। यानी कि सेल एड्रेस के कंटेंट को जब इसने पिक किया, पिक करने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं आया। क्यों, H2 में कुछ लिखा ही नहीं है। नथिंग इज रिटेन इन H2 सेल। ओके, तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए आया हमारे पास एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। कैसे देखते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं फॉर्मूला बार में, और फॉर्मूला बार में हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया डॉलर। डॉलर आपको कहाँ मिलेगा, 4। आपको क्या करना है, 4 प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ आपका डॉलर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आ गया।
अब एक काम करते हैं यहाँ पर कि हमने क्या किया है, G2 इसको हमने बना लिया है कांस्टेंट कि अभी चेंज नहीं होगा, ये याद रहे, अब आपको एड्रेस चेंज नहीं होगा लेकिन केवल G के लिए। और यहाँ पर जो 2 लिखा है, जो कॉलम नंबर है वो चेंज हो सकता है क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है ये, 2 के बाद 3, 4, 5, 6 इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, इसको ड्रैग करते हैं, देखते हैं आंसर आता है या नहीं आता है। इस तरह से हमने ड्रैग किया, सी आंसर आ गया। देन आफ्टर सी, अब आपका देखिए $G2 कहीं भी एड्रेस चेंज नहीं हुआ, तो ये क्या होता है हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, यानी कि जिस चीज़ को हम चाहें उस चीज़ को कांस्टेंट बना सकते हैं। एक काम करते हैं, 2 से पहले डॉलर लगा के देखते हैं क्या होता है। 2 से पहले इस तरीके से ड्रैग करते हैं, देखिए कोई चेंज नहीं है। अब हमने क्या किया, G2 को बिल्कुल ही कांस्टेंट बना दिया कि हमने चेंज किया ही नहीं, ठीक है। तो उम्मीद, अब एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो एस्केप दबाइए पहले आप, यहाँ पर आपने क्या किया, इसको हटा दिया। अब आपने इसको हटाने के बाद अब देखिए यहाँ पर ड्रैग करके देखिए क्या होता है, देखिए फिर से 0 आ गया। So students, in mixed referencing, if you see here, there is only $1 is used here. It means that G is going to be changed to the next letter, but 2 means the row number is not going to be changed. Okay, let's use one more time. Let me put a dollar sign here, then I will going to remove this. Right now this is not a dollar, dollar is like this. Now after this, drag one, after dragging like this, your answer will become. So this is the one kind of example of mixed referencing. Reason is only the G is going to be changes here, G, H, I, J like this, and after this 2 is constant. The column number, the row number is going to be constant here. Okay, so let me give one more recall for all the references. First I have given the explanation about relative reference. Second I have given the reference about absolute referencing. In absolute referencing, what you are doing, you are going to use the dollar before going to use the dollar before the row number or column number, or just remember that you have to use a dollar sign before that. That's it. And mix means the address is going to be changes and row number or column name going to be changes somehow, and out of this only one become constant. Okay, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि G2 जो लिखा हुआ है यहाँ पर, कि यहाँ पर G आपका कांस्टेंट हो गया, G आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, 2 आपका चेंज हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अब हम इसको हटा देते हैं, हम डिलीट कर देते हैं, और डिलीट करने के बाद अब हम यहाँ पर D2 में डॉलर लगाने जा रहे हैं। अब हम D2 में डॉलर लगा देते हैं, और डॉलर लगाने के बाद अब हम देखेंगे यहाँ पर डॉलर हम यहाँ भी लगा देते हैं। 2 जगह हमने डॉलर यूज़ किया है। ओके, चाहो तो इसको हटा देते हैं। ओके, और अब हम चेक करते हैं कि क्या आंसर हमारा आता है। ये देखिए यहाँ पर C2 इंटू $G2 लिखा हुआ है। ओके, अब हमने अगर C2 को ही कांस्टेंट बना दिया, अगर $C2 इसको हमने कांस्टेंट बना दिया, और अब हम इसको हटा देते हैं। अब हम इंटर दबाते हैं, तो अभी आपका देखिए आंसर वही है आपका। अब आपका C2 कांस्टेंट हो गया। ओके, अब हम इसको ड्रैग करते हैं, ड्रैग कर देखिए 0 आ गया। क्यों, कारण ये है, देखिए इसके एड्रेस देखिए $C2 यानी कि 800 यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और यहाँ पर आ गया S2 में कुछ लिखा ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट और एक कांस्टेंट नहीं है। तो ये आपका हो गया मिक्स रेफरेंसिंग।
उम्मीद करता हूँ कि आपको इस ये जो कुछ भी समझाया गया है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. बट इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिलेटेड टू दिस वीडियो, डेफिनेटली यू कैन गेट इन टच विथ मी. Okay, now let's come to our next slide. This is my PowerPoint. Now I'm coming to the next slide. So students, right now it is taking little bit of time. Now the screens came here, so each and every point is going to clear here. Now let's come to the next slide. Okay, so right now this is the topic number 7, cell references of another worksheet. Okay, so there is two kind of method. One is copy paste method, second one is using sheet references. Okay, so let's understand practically. Let's come to my screen. It is taking little bit of time. Now screen is came. This is the screen. Okay, so we have to understand about what is copy paste method. Okay, and how we are going to use the cell referencing. How we are going to use the cell referencing here. Right now, this is your one kind of workbook. The name of the workbook is Virendra. 3 sheets are there: sheet 1, sheet 2, sheet 3. Okay, so now I have taken sheet 2. Let me zoom it. Okay, now after that I am going to write something here. Suppose I have written 100 here. Okay, now coming to the sheet 1. So what I'll do here, I want the sum of that number which is written in sheet 2 in sheet 1. First of all, this is equal to sign. Then I have written address of cells, that is C2. Suppose I have written C2. Then press shift button, sorry, plus button. After that, write here sheet 2. Right here sheet 2. After that, put exclamatory sign here. Please don't forget, you have to use the exclamatory sign here. Okay, sheet 2. And after that, write here address of the cell. So address is A1. Now press enter button and let's see what is happening here. See, 800 and plus 100 is equal to 900. It means you have to use the cell referencing in this way also. You can take the reference of another worksheet also. So this is the practical demonstration for all kind of topics here. Now let's come to our PowerPoint slide. Let's wait to come. It is taking little bit of time, so still you have to give your patience here. Now the screen came here. Yeah, now it's time for quiz. It's a quiz time. Let's check your understanding. You have to check your understanding whether you are able to understand or not. What is the easiest way to define the names of the cell? What are elements of formula? What is the difference between basic formula and compound formula? And what is the shortcut key to use to go in edit mode in MS Excel? And what is concatenation? Okay, these are the few questions. You have to check your understanding and you have to give the answer on my YouTube comment. Okay, let's come to the next screen. So after completing this session, what you have to learn? आपने क्या सीखा? आपने सीखा what is cell range, how we are going to use the table, how we are going to use the cell references, how many types of cell references, like relative cell references, absolute cell references, mixed cell references. Okay, okay. And after this, how we are going to use this cell reference another worksheet. So this is the topics which you have learned. आपने इन सभी चीज़ों को सीख लिया इस वीडियो में. उम्मीद करता हूँ किसी भी तरह के प्रॉब्लम के लिए ज़रूर मेरे पास आप बातचीत करेंगे, मेरे पास ज़रूर आप व्हाट्सअप करेंगे या मेरे से फ़ोन करेंगे या यूट्यूब कमेंट में आप मेरे से चैट करेंगे आप. लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. थैंक यू सो मच. दिस इज द स्क्रीन केम हियर. So thank you so much for watching this video. Okay, I will meet in next video with new concept, new topics. Okay, so please don't forget to subscribe my channel. And also,
if you want the updated notification for my videos, definitely you have to press the bell icon. So thanks so much for watching this video from starting till the end. Thank you so much.